ختم ہو جائے. قوم نیوز چینل سے اس ٹائم ہم کراچی کے علاقے فرنگی نمبر 2.5 کراچی پر ہم ہیں اور یہاں پر سودا کوئٹہ کے لیے دھرنا جاری ہے کہ علامہ اشرف علی متضری صاحب خطاب کر رہے ہیں. دھرنا جاری ہے کثیر تعداد میں سندھ حکومت کے جو وزیر جو ٹی وی پہ بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, عوام کی بڑی کثیر تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت حسینی امام بارگاہ کے ایریا فرنگی کے ججی صاحب موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نواز ہو, دھرنے کو کامیاب بنائیں. یاد رکھیے گا آج کوئٹہ والے ڈسٹرب ہیں, تو خدا نہ کرے گا ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو, اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو یہ مظلوم ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ائمہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے, ہمیں نکلنا چاہیے. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ آج پریشان ہیں. یاد رکھیے گا یہ وہی کوئٹہ والے ہیں جب کبھی کراچی میں کوئی بم دھماکہ ہوا ہے, جب کراچی میں کوئی شیعہ کلنگ ہوئی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایم پی ایم کے دور میں ہمارے لاکھوں بے گناہ لوگ قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, ذبح کیے گئے, اور انہوں نے سوچا اس طرح قتل و غارت گری کرنے سے ان کی کرسی مضبوط ہوگی, جبکہ یہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے تھے. آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئی, دفن ہو گئی, لیکن آج الحمدللہ مکتب تشیع آج بھی برقرار ہے, عزاداری آج بھی. ماشاءاللہ ملتانی شہر خطیب حسینیت خطیب اہل بیت قبلہ علامہ علی سجاد عابدی صاحب سے کہ وہ آئے اور تاغوت شکن خطاب فرمائے. آغا صاحب کا استقبال کرتے ہوئے 5 دفعہ لبیک یا حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں گے, لبیک یا حسین. ماشاءاللہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور محمد والی بیت محمد صلوات. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری, حیدری. نقصان پہنچ گیا. رو اگر ملوث تھی تو رو نے اس کوئلے کی کان کو دھم آگے سے کیوں نہیں اڑایا کہ جو کوئلہ پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا, جو مالی طور پہ بھی فائدہ پہنچا رہا تھا, رو نے اس کو کیوں نہیں اڑایا؟ رو نے فقط 17 میں سے ان 11 کو کیوں مارا جو شیعہ تھے؟ ہمیں ہزارہ کمیونٹی مت کہنا, ہمارا پنجابی ہو وہ بھی شیعہ ہے, سندھی ہو وہ بھی شیعہ ہے, بلوچی ہو وہ بھی شیعہ ہے, پٹھان ہو وہ بھی شیعہ ہے, کلگتی ہو وہ بھی شیعہ ہے. تبدیلی والا پاکستان ہے, ہمیں تو اس پاکستان سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہم پاکستان ہم کون ہے جانتے ہیں نا؟ ہم وہ ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا یہ ملک, اس لیے نہیں بنایا تھا کہ شہروں میں ان کے بچوں کے لاشوں کو پامال کیا جائے, بلکہ ہمارے باپ دادا نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ان کی اولادیں ہندوؤں سے نکل کر انگریزوں سے بچ کر پاکستان میں صحیح و سالم رہے. یہ تمہارا نہیں, یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم سن 47 سے لے کے آج تک نہ کل پاکستان کی مخالفت میں گئے تھے, نہ آج جا رہے ہیں, نہ آگے جائیں گے. ہمارے دل کی آواز ہے پاکستان. پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. سنو, قربانی دی. اب میں دعوت کلام دوں گا محمد حسین عابدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں, جو کہ گلستان جوہر سے یہاں تشریف لائے ہیں, اور آنے والی ریلی کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ خواتین کو راستہ دیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف مظلوموں کی حمایت میں ایک صدا بلند ہو رہی ہے. اس صدا کا نام ہے لبیک یا حسین. وہ اس لیے کیونکہ ہمارا پیشوا، ہمارا رہنما حسین ابن علی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزان محترم، ہم افواج پاکستان سے، ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کچھ مہینہ پہلے اس ملک کے اندر عمل لے کر آئے، اسی طرح دوبارہ عمل لانے کے لیے کم از کم بلوچستان کی حد تک آپریشن کر کے ہمارے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کر ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہمارے شہداء کی فیملی آج اتنی ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر کوٹے کربلا کے اندر بیٹھ کر اپنے شہداء کی لاشیں لے کر ہماری ماں بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو تنہا نہ سمجھنا اور ان کو لاوارث نہ سمجھنا. ہم شیعان حیدر کرار ایک ہی آواز پر جمع ہوتے ہیں. چاہو تم کتنی کوشش کر کے ہماری صفوں میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرو، تب بھی یاد رکھو ہمارے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو تم کبھی نہیں چھین سکتے ہو، وہ محبت حسین ہے. ارے چلو مدینے میں گھر پہ جائیں گے. ارے چلو مدینے میں گھر پہ جاتے جائیں گے. ارے غدیر کیا ہے انہیں یاد ہم دلائیں گے. ارے فدق تو چھو گیا میرا، ارے فدق تو چھو گیا میرا، یہ حق نہ چھینے بھی کا. مدد کرو فدا، مدد کرو فدا، مدد کرو فدا. ہمارے اور آپ کے آقا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو، اے حسن و حسین، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، ہمیشہ تمہارے ہاتھ ظالم کے گروبانوں میں رہے اور ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا، ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا. میرے مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مظلوم کون ہو، وہ تمہارا خونی رشتہ دار ہو، وہ تمہارا برادر ایمانی ہو، وہ تمہارا کوئی دوست ہو، نہیں، بلکہ کہا تھا کہ جو بھی مظلوم ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں اس کا مددگار رہنا، تمہیں اس کا ناصر رہنا ہے. یہی سبب ہے کہ آج جب مجھ میں ظلم اٹھایا گیا، ہمارے بھائیوں کے گلے کاٹے گئے، تو ہم ان کی نصرت میں رات کے اس پہر یہاں سردی میں، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں، یہ میری ماں، یہ میری بہنیں یہاں موجود ہیں،
اپنی گودوں میں ننھے شیر خوار بچے لیے ہوئے صرف اس لیے کہ اپنے مولا کے قول پر لبیک کہتے ہوئے کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، ہم ظالم کے دشمن ہیں، وہ ظالم چاہے کوئی بھی۔ یہ درندے ہیں مچھ میں کس طریقے سے ان مزدوروں کی لاشیں گرائی ہیں اور لاشوں کو ہاتھ اور پاؤں سے باندھا ہے اور پھر مار کر ان کی گردنوں کو کاٹا ہے۔ یہ عمل ان کا بتا رہا ہے کہ ان کا نہ توحید سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حکمرانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ حکمران سمجھ کے بھی بے سمجھ ہے، وہ اس کا اقرار نہیں کر رہے۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میں وزیر اعظم جناب عمران خان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، 3 دن سے وہ مظلوم اپنی میتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کابینہ کے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ وہاں پہنچ جائے، وہ آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے، صرف آپ دلاسا دینے کے لیے تو پہنچ جائے، آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھو میرا آخری فکرہ جہاں تک ہے میں عالم انسانیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ اے عمران خان، اگر ان مظلوموں کی حمایت میں کوئٹہ نہیں پہنچے، کٹی ہوئی گردنوں پہ تم نے تعزیت نہیں کی تو یاد رکھو یہ حکومت تو کیا، حکومت تو نہیں رہے گی، تمہاری گردن بھی نہیں رہے گی۔ والسلام علیکم۔ ہم احترام کرتے ہیں تمام اہل سنت برادران، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے غم میں وہ آتے ہیں، ہم ان کے غم میں جاتے ہیں۔ یہ بھارت کے ایجنٹ، یہ طالبان کے نمائندے یہ بھول جائے کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے، نہیں ہوں گے اور نہ ہوئے۔ آج بھی اس کراچی شہر میں، کوئٹہ میں، ملک کے اسلام آباد میں، تمام جگہوں میں دھرنے ہیں۔ اگر ایک بھی ہم نے درخت کا پتا توڑا ہو تو ہمیں بتائیں۔ ہماری تاریخ ہے شہداء کی، ہماری میراث ہے شہادت، اسیری ہماری میراث ہے۔ بس اگر اب بہت ہو گیا، قربانی کا بکرا کسی اور کو بنائیں۔ 4 دن ہوا، اس 4 دن میں کبھی علی زیدی جا رہے ہیں، کبھی زلفی بخاری جا رہے ہیں، اب شیعہ کاٹ کھیل رہے ہیں۔ یہاں ملت جعفر یہ شہداء کا مسئلہ ہے، ہمیں قاتل چاہیے۔ آپ نے اس 4 دن کو ضائع کیا، اس 4 دن میں آپ نے کتنے گرفتاریاں کی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں وہ نامعلوم کون ہے؟ وہ نامعلوم تو آپ کے کھور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعظم طارق کے بیٹے معاویہ اعظم، کیا آپ کا
पंजाब का असेंबली का हिस्सा नहीं। अगर नहीं है सर पे कुरान रख के बताएं। एक तरफ में आप चुनी रखते हैं और दूसरी तरफ में आप दलदल तंजीमों के रहनुमाओं को अपने गोदों में बिठाते हैं और कहते हैं मैं रियासत मदीना बना रहा हूं। हर किसी रियासत मदीना नहीं बनने जा रहा। फिलहाल इस टाइम मैं कहने पर मजबूर हूं कि रियासत यजीद है। ये यजीद इसी तरह घुमंड में था। हमें मालूम है कि हाथ को किसने लाया, हमें मालूम है कि हाथ जा क्यों नहीं रहे। आपको हर चीज से बोला जाओ, आप नहीं जाए, मगर आपको आना होगा। आपके अच्छे भी जाएंगे। अगर आप नहीं गए तो मैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी है, तमाम चीजें चल रहे, बंद करें रेलवे ट्रैक, बंद करें मेरे सिंध के जवानों। निकले अपने घरों से, हैदराबाद के मोमिनी, धातु के मोमिनी, सिंध के मोमिनी, नौशेरो फेरोज के मोमिनी, निकले रेलवे ट्रैक्स बंद कर दे, पायाजाम कर दे, बंद कर दे तमाम रोड। अब नहीं चलेगी ये बदमाशी, या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनीन, 5 रोज से मोमिनीन मुसलसल ये एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज में एक ही नुक्ता पेश कराची के इलाके शारे फैसल पर है लोग, शारे फैसल रोड पर जहाँ पर सौदा कोयटा के लिए धरना जारी है और आवाम की कसीर तादाद में यहाँ आवाम मौजूद है। बड़ा जोश खरोश पाया जाता है लोगों में यहाँ पे और ताकते नजर आप लोग देख रहे होंगे धरना जारी है, तकरीर कर रहे हैं और बहुत माशाल्लाह आवाम में बड़ा जोश खरोश है। तो सौदा कोयटा के लिए जो धरना है वो सारे फैसल एयरपोर्ट रोड पे बिग रोड पे जारी है। यहाँ बॉम न्यूज चैनल के जरिए आपको यहाँ की बराह रास्त लाइव अपडेट दिखा रहे हैं। और आज कि जब दहशतगर्द असेंबलियों में सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि अपनी दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट कर सकें, तो मिल्लत जाफरिया के ये नाम नहाद शिया कहलाने वाले अली हैदर जैदी और जुल्फी बुखारी के जिन्होंने कोयटा जाकर अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान किया, कि जिन्होंने शिया कार्ड खेलने की कोशिश की, जिन्होंने मसलक कार्ड खेलने की कोशिश की। मैं मुखातिब करके कहता हूँ अली जैदी और जुल्फी बुखारी को कि जो इन्होंने वहाँ लवाहिकीन शोहदा को मुखातिब करके कहा जुल्फी बुखारी ने कि वजीर आजम अगर कोयटा आए तो आप क्या फायदा दोगे, तुम क्या फायदा मांग रहे हो उस माँ से कि जिसका जवान बेटा गला कटा हुआ सामने पड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आई खुद को सैयद कहते हुए, खुद को शियाने अली कहते हुए ये कौम लानत बेचती है। ऐसे मुनाफिक सिफत शियाने हैदर कर्रार कहलाने वालों पर, ऐसी इस मिल्लत को आप जैसों की जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैं उन मुनाफिक सिफत हुकूमत के पैसों पर पलने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के पैसों पर पलने वाले मीडिया इदारों को भी ये वाज़ेह कर दूं, जो कल से मीडिया इदारों ने, समाओ ARY जैसे इदारों ने मिल्लत जाफरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ है। हमारे धरने मुल्क भर में पुरम तरीके से जारी हैं। ये कोई दहशतगर्द कौम नहीं, ये पाकिस्तान बनाने वाले हैं, पाकिस्तान बनाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे कराची के मारूफ शख्सियत
शाह आलम काज़मी साहब स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं, जो शाहरा फैसल पे जो शोहदाए कोयटा के लिए जो धरना इस टाइम जारी है, उसमें इर्तिज़ा हैदर काज़मी के साथ शाह आलम काज़मी साहब और इर्तिज़ा हैदर काज़मी के लिए भी हम कहना चाहेंगे। तो शाह आलम काज़मी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कौम के जवान, मेरे कौम की माँ बहनें कुछ शोहदाए करबला के लिए आज फर्श रोड पर बैठी हुई हैं। कहाँ है इक़्तिदार, कहाँ है यहाँ के हुक्मरान? आगे देखें, ये मजलूमियत है। हम लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते, बाकी हमारी माँ बहनें किस तरह रोड पे बैठी हुई हैं। क्या आप लोगों की माँ बहनें नहीं हैं? खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मोमिन बनिए, इनका ख्याल कीजिए, इनके जो मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम कीजिए और इनका साथ दीजिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इस टाइम स्क्रीन पर आपके सामने मारूफ बैनुल अक़वामी ख़तीब नजफ़ अशरफ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इर्तिज़ा हैदर काज़मी साहब स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। और ये शोहदाए कोयटा के लिए जो शाहरा फैसल पे एयरपोर्ट रोड पे जो यहाँ धरना जारी है, उसमें तो हम दुनिया भर के अज़ादारों के लिए, मोमिनीन के लिए और पूरी इंसानियत के लिए क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे और क्या? सबसे पहले तो जितनी मज़म्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है, इसलिए कि ये यजीदी नस्ल, ये यजीद के पैरोकार, ये औलाद यजीद जो आज तक बाकी है, जो आज इस तरीके से इस मतलब जिसको अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मतलब एक वो अभी मैंने रिसेंटली एक खबर पढ़ी थी कि अब्बास टाउन में या किसी जगह पर एक खातून हज़ारा की, वो अपने साथ एक बकरी का बच्चा घर लेकर आई थी। और वो ये कह रही थी कि न जाने पता नहीं कितने दिन मुझे यहाँ रहना पड़े, यहाँ रुकना पड़े, बेचारा बेजबान जानवर है, इसको दाना पानी कौन करेगा, अकेली मैं पालने वाली हूँ इसको। तो सोचिए, मतलब एक ज़ईफ़ खातून एक बेजबान पर इतनी शफकत कर रही है। वो क्या अफराद थे कि जिन्होंने बेदर्दी से, जिससे मतलब जो घर में इस्तेमाल होने वाली छुरियों से गले काटे गए हैं। अल हफीज़ अल अमान, जिनके लिए अल्फाज नहीं हैं इन जुमलों के लिए। मैं तमाम तशियान हैदर कतार की तरफ से, तमाम मिल्लत की तरफ से खुदा की लानत हो उन अफराद पर, उन अशिया पर कि जिन्होंने ये जुल्म ढाया है। और इंशाअल्लाह लोग देखेंगे और खुदा की आवाज़, खुदा की लाठी जो बे आवाज़ है यकीनन बरसेगी, और ऐसी बरसेगी कि देखा जाएगा इमाम आदिल का जब ज़हूर होगा और इंशाअल्लाह जब वो आएंगे तो फिर इस तरीके से उनको कत्ल करेंगे जुल्फ़िकार। जब उनकी गर्दनों पे चलेगी तो वो इसलिए चलेगी कि दुनिया देखेगी। वो करबला का भी इंतकाम लेंगे और कोयटा के मच के लोगों का भी इंतकाम लेंगे। माशाल्लाह, ये थे नाज़रीन इर्तिज़ा हैदर काज़मी साहब नजफ़ अशरफ से तशरीफ़ लाए हुए मारूफ बैनुल अक़वामी ख़तीब अज़ा इर्तिज़ा हैदर काज़मी साहब आपसे मुखातिब थे। माशाल्लाह नाज़रीन, ये इस टाइम स्क्रीन पर आपके सामने मिनहाल अब्बास मारूफ नौजवान ख़तीब और शोला बयां ख़तीब स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो पुरजोर मज़म्मत करता हूँ मैं इस चैनल वोम्स न्यूज़ से। वॉइस ऑफ अदादार है ये जनाब हकीम मुर्तज़ा जारचवी साहब और हैदर भाई हमारे हर प्रोग्राम में, हर मिलाद में, हर जश्न में आगे होते थे। और इसी तरह जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहर कराची के सबसे मेन और अजीम शाहरा फैसल पे मौजूद इस शुरकाए धरने की कवरेज के लिए पहुँचे। मौला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सबसे पहले मैं इस चैनल के तवस्सुल से ये मुतालबा करता हूँ, हमारे भी वही 8 मुतालबात हैं जो सानेहा मच की बैठी हुई फैमिलियों के मुतालबात हैं। मैं लानत भेजता हूँ इन हुकूमत पर, इन वज़रा पर जो मेरी शिया कौम की माओ बहनों को जाकर उनकी लाशों के दरमियान पैसों के लालच देकर उनकी लाशें ख़रीदने की कोशिश करते हैं। वज़ीर दाखिला साहब वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से 10 लाख और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाख का ऐलान हुआ है। और वो नाम नहाद जुमेराती सैयद जुल्फ़ी बुखारी
और अली जैदी साहब भी ये शिया कार्ड खेल के कोयटा के अंदर भेजा गया इनको, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो कि तुर्किश ड्रामा तुगल गाजी की कैबिनेट से इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे हैं। कल की उम्मीद थी मेरी शिया कौम के अंदर के जुम्मे के रोज़ शायद वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँचे, लेकिन जुम्मे को भी उनका शेड्यूल जो है वो लाहौर के अंदर है। उनके मुखालफत PDM की जो मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो हैं वो कोयटा के अंदर पहुंच गए। तो मेरी शिया कौम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये धरने को सियासत की नज़र कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस होम न्यूज़ के ज़रिए शेयर करें। और शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा अपनी शिया कौम की माओ बहनों का कि जिन्होंने पाक तरीके से अपने घर की परवाह की, अपने बच्चों की परवाह किए बग़ैर यहाँ अजीम शाहराहों पे बैठे हुए हैं। और मेरे साथ में खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम अपने अहले सुन्नत भाइयों का कि जिन्होंने हमारे साथ इस धरने के अंदर कोऑपरेट किया, और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कि जिन्होंने हमारे साथ इस धरने के अंदर कोऑपरेट किया। याद रखना ये धरना शहर कराची के अजीम शाहराह पर 4 दिन से जारी है, लेकिन कोई भी एक भी अहले सुन्नत या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला मेरा भाई को यहाँ की ये नहीं कह सकता कि मेरी गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया गया हो। ये एक रोड पे धरना दिया जा रहा है और दूसरा रोड एम्बुलेंस के लिए हमने खोला हुआ है। हुकूमत से अपील करते हैं कि इस पुरअमन धरने को और इस पुरअमन कौम को पुरअमन रहने दो, हमें मजबूर ना करो कि हम वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का घेराव करें। याद रखना अगर हम पुरअमन रहना जानते हैं तो हम मुंतशिर होना भी जानते हैं, और हम मुंतशिर आँख से आंसू गैस की शेलिंग से नहीं होंगे। फिर हम मुंतशिर इस तरह होंगे या तो तुम्हारी हुकूमत तबाह हो जाएगी या उन शहीदों की लाशों के साथ हमारी भी लाशें रख दिए जाएंगी, क्योंकि इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत ये मेरी माएँ बहनें जो मेरे धरने के अंदर मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये धरना 5वें रोज़ में दाखिल है। जब तक ये मुमलिकत खुदादाद और ये वो रियासत मदीना के नाहल वज़ीर आज़म अगर ये किसी और के कार्ड के ऊपर वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। वज़ीर आज़म हमारे लिए काबिल मोहतरम है, हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे, किसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे। मेरी शिया कौम ने बड़े जनाजे उठाए, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, कभी हमने पाक फ़ौज को बुरा भला नहीं कहा, कभी हमने सिंध रेंजर सिंध पुलिस को बुरा नहीं कहा। हमने हमेशा सिंध रेंजर सिंध पुलिस पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए। हम इस वतन के बानी है, बानी ये पाकिस्तान की औलादों में है। ये पाकिस्तान हमने बनाया था और ये पाकिस्तान हम बचाएंगे। तो एक दफ़ा मैं तमाम देखने वाले जितने व्यूवर्स हैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब मेरी शिया कौम की माएँ बहनें इस रोटों पर आकर बैठ गईं तो मेरी शिया कौम के हर मर्द पर वाजिब है कि वो अपने घरों से निकलें। याद रखना आज को कोयटा में 8 शहीद हुए, 11 शहीद हुए हैं, कल को तुम्हारी भी बारी है, कल को हमें भी शहीद होना है, क्योंकि ना तुम अलीउन वलीउल्लाह छोड़ सकते हो, ना दुश्मन अलीउन वलीउल्लाह में तुम्हें कत्ल करना छोड़ सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हकीम मुर्तज़ा जारचुबी और वॉइस ऑफ अदादार न्यूज़। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये थे मारूफ रहनुमा वजीउल हसन आब्दी साहब। भाई मैं इसे इतना कहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म की बड़ी बेइज्जती है कि एक कौम जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार किया, जिसका सरबराह जनरल मूसा खान साहब जो जी उस वक़्त जनरल थे और 1965 की जंग उन्होंने लड़ी और दुश्मन को हिंदुस्तान को उन्होंने चने चबा दी और वैसे भी जंग को बड़ी कामयाबी से लड़ा और कामयाबी और जंग जीत गए पाकिस्तान। उसके बाद उनकी खिदमत के तौर पर उनको मूसा को जनरल मूसा को वो भी गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे। उन कौमी शराफी जिनकी कुर्बानियाँ और उनको आज इतनी बेतरतीब से शहीद किया जा रहा है। आप ये देखें कि निशानी करके मारा जा रहा है और आप कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो भाई आप कितनी बेइज्जती गवर्नमेंट की, तो अवामी गवर्नमेंट है ना। सभी को याद है, तो सब टीवी पे आ रहा है कि जब जिस समय पहले पहुँचे थे हमारे इमरान खान साहब आप हमें जो है हम आएंगे और ये हुकूमत आपके देखें आज अपोजिशन पहुँची। और मैं बस मुख्तसर कहूँगा, मैं अपोजिशन को बहुत अब खतरे की निगाह से देखता हूँ और मैं बाज़ाते खुद मैं इमरान खान की बड़ी कदर करता था और मैं समझता था ये बहुत ही एक जमहूरियत पसंद है और अवामी खिदमतगार है। लेकिन आज उन्होंने बहुत मायूस किया। अभी वक्त है, क्योंकि शिया कौम बड़ी मतलब ये कि मुखलिस है और उन्होंने पाकिस्तान के बनाने में बड़ा किरदार है, सब जानते हैं। बहरहाल बस मैं
मेरे पास इसमें इतना बड़ा ये काम है कि वो सर्दी में -7 है बैठे हुए। हाँ, तो हम आप बस बहुत अल्फाज शदीद तरीन सर्दी में माशाल्लाह। और मैं कराची में ये हाल है, तो वहाँ कोयटा में तो माशाल्लाह। ये नाज़रीन इस टाइम स्क्रीन पर आपके सामने मारूफ शिया रहनुमा राशिद रिजवी साहब आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, और दीगर PSP के रहनुमा हैं। क्या गुड नेम? सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साबिर साहब हैं, राशिद रिजवी साहब हैं शिया मिसिंग पर्सन के। एहसान साबिर जनरल सेक्रेटरी, सूफिया सईद नायब सदर, नजम मिर्ज़ा सदर डिस्ट्रिक्ट औरंगी, जफ़र सुलेजा नेशनल कौंसल मेंबर नेशनल कौंसल, मंजूर अहमद साहब ये स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। ये तो हम रहनुमा, और तो हम सबसे पहले बात करेंगे राशिद रिजवी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या ये वॉम न्यूज़ चैनल के ज़रिए आपके सामने? आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त चारा फैसल के धरने में हम लोग मौजूद हैं, और ये धरना भी जो है कराची के धरनों में से एक धरना है जो कि कोयटा में शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए दिया जा रहा है, और सैकड़ों की तादाद के अंदर माँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं इज़हार यकजहती के लिए। 5वां दिन है जनाजों को रखे हुए, और आइनी मुतालबा है कि इंसाफ फराम किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वक्त जो है हमारे दरमियान जो है पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा जो हैं मौजूद हैं, और इनकी टीम जो है इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आई है। शोहदा के लवाहिकीन जो बैठे हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए आई हुई है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर के ऊपर कि इन्होंने एक हमारे दर्द को अपना दर्द समझा, एक शिया का नहीं बल्कि एक इंसान के दर्द को अपना दर्द समझा, क्योंकि शिया और सुन्नी का तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, और न शिया सुन्नी का झगड़ा है, बल्कि दहशतगर्दी का शिकार हुई हैं वो फैमिलीज़। कारकुन जो थे वो कारकुन जो थे गरीब थे, मजदूर थे वो, और जो दहशतगर्दी का शिकार हुए, दहशतगर्दियों को कोई मजहब नहीं होता, ना वो सुन्नी होता है ना शिया होता है, लिहाजा शिया और सुन्नी इस वक्त एक साथ मुत्तहिद हैं इस धरने के अंदर, और पैगाम जा रहा है कि शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा होता तो शिया सुन्नी मुत्तहिद होकर इस धरने में एक जगह जमा नहीं होते। आप कुछ कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना तारुफ भी कराइएगा ज़रा। एहसान साबिर, सेक्रेटरी जनरल पाक सरज़मीन पार्टी। मुस्तफ़ा कमाल भाई की हिदायत पर हम कराची में तमाम धरनों में जो है वो अपनी प्रेजेंस इज़हार यकजहती के तौर पर, और लवाहिकीन जो मच सानहे में जो लोग शहीद हुए हैं उनके तमाम लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और उनके पुरसे के लिए हम तमाम लोगों के साथ जो है वो यहाँ हाजिर है, कराची में भी और कोयटा में भी, और तमाम वो जहाँ पर धरना दिया गया है। देखिए अभी भाई ने बिल्कुल इतनी खूबसूरत बात की है कि इसमें सुन्नी और शिया का कोई अमल दखल नहीं है, ना तो दहशतगर्दी में जिन्होंने दहशतगर्दी की है वो सुन्नी हो सकते हैं या शिया हो सकते हैं, या जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब मुसलमान हैं, सबसे पहले मुसलमान हैं और आखिर तक मुसलमान हैं, आखिरी दम तक मुसलमान हैं। हम किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकते। तो यही पैगाम लेके मुस्तफ़ा कमाल भाई का हम इस शहर के अंदर, इस पूरे मुल्क में जहाँ पर भी लोग धरने पे, हमारी माएँ बहनें बच्चे हमारे भाई मौजूद हैं, हम वहाँ पर जा रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। और ये हम फोटो सेशन के लिए नहीं कर रहे, ना हम जो है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आगे आधा घंटा या 5 मिनट आगे बात करेंगे। हम 24 घंटे इनके साथ हैं। 24 घंटे के तौर पर हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट, टाउन और हम शुक्रगुजार हैं एहसान साबिर साहब आपके, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया एहसान साबिर साहब। नाज़रीन ये थे स्क्रीन पर आपके सामने इस टाइम एहसान साबिर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतने शौक में हूँ, एक औरत होने के नाते मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। आज मैंने कोयटा फ़ोन किया तो मुझे वहाँ से मिला कि जी -9 है। हम ये तस्वीर करें, एक औरत जो कि कमज़ोर होती है मर्दों के मामलों में, वो -9 पे अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई, और हुकूमत को 5 दिन गुजर गए, इस बात का कोई एहसास नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ हुकूमत ने जो कि पहले कहती रहती थी कि हम हर वक्त अज़ादारों के साथ हैं, हर दुख में उसमें हमारी हुकूमत में कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो कुछ हुकूमत ने किया उसने हमारा शर्म से सर झुका दिया कि ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। हमें बहुत अफसोस हुआ है।
अब कोई अल्फाज नहीं कि अपनी माँ बहनों को क्या कह सकती हूँ। इसीलिए मैं उनके मुस्तफा कमाल साहब, हमारी पूरी पार्टी दुख में हर तरह से शरीक। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी ऐड कर लें इसमें कि हुकूमत को थोड़ी सी शायद शर्म कर लेनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, जहां उसके इस बदकिरदार एटीट्यूड की वजह से इस मुल्क के अंदर माएँ बहनें बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं इस शदीद सर्दी के आलम में। तो थोड़ी सी गैरत कर लें अगर रह गई है, जो कि इस हुकूमत में नजर कहीं नहीं आ रही है, थोड़ी सी गैरत कर लें और जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए जो है ना, इस वक्त आपको इस रात के पैर में भी अगर निकलना पड़े, आपको कोई टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपना चार्टर तैयारा लेके जा सकते हैं और उन लवाकिन की जाकर आप दाद रसी करें। वो आपसे सिर्फ इस वक्त जनाजे को कंधा देना मांग रहे हैं, वो कुर्सा मांग रहे हैं आपसे, आप वो दे दीजिए। आप इस रियासत के सरबराह बन गए हैं और वो समझे इस बात को कि आप रियासत का सरबराह क्या हो सकता है और वो क्या कुछ कर सकता है। नहीं, आप ट्विटर पे आपका एक मैसेज छोड़ देने से आपका फर्ज अदा नहीं हो गया। जाइए, इज़हार यकजहती ना कीजिए, आप जाकर उनके साथ खड़े हो जाइए। जो आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस वजह से वजीर आजम साहब कोयटा नहीं जाना चाह रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज जो कोयटा पहुंच गए हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है? वो भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज हैं, उन दोनों के लिए जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो आपके लिए कैसे हो सकता है? लिहाजा बेवकूफ ना समझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें, शर्म करें। बहुत शुक्रिया एहसान साबिर साहब और दीगर अरकान और राशिद रिजवी भाई, हमारे सियाम सिंह। हमारी माएँ, मैं क्या माँ बेटी भी सर्दी में, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि माशाल्लाह कि वो जज्बा हमारे हुसैनियत का है, वो जज्बा ईमानियत है कि आज 6 दिन हो गया कि वो अपने लवाकिन के जनाजे लेके बैठी हुई हैं। उनका सिर्फ इतना मुतालबा है कि डम्मी वज़ीर आज़म साहब, आप जाओ और जाके शफ़क़त बड़ा हाथ रख दो, मगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा तो याद रखना, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट तुम्हें शिया ने हैदर कर्रान ने दिए थे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने तमाम मेहमान खुसूसी का, और राशिद रिजवी माशाल्लाह हमारी क़यादत कर रहे हैं, तो वो मेहमान खुसूसी। गुड नेम आपका? गुड नेम अख्तर रिजवी। नाज़रीन, ये अख्तर रिजवी भाई आपके सामने स्क्रीन पर आपसे मुखातिब है और बड़ा अच्छा ख्यालात का इजहार किया है इन्होंने, अपना बड़ा अच्छे अंदाज में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया है इन्होंने। ऐसे लोगों ने जाके बाबा को मैं बताऊंगी, मुझको मारा है कैसे लोगों ने जाके बाबा को मैं बताऊंगी, मुझको मारा मेरे बाबा कैसे लोगों ने मेरे बाबा के जाके बाबा को मैं बताऊंगी, मेरे बाबा के पाक फरमा को कह के जिसने झुठलाया, मेरी तकदीर कैसे की उसने, हाल बाबा तो मैं सुनाऊंगी, मुझको मारा है कैसे लोगों ने जाके बाबा को मैं बताऊंगी, मुझको मारा कुछ देर के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं मलीर के धरने में। तो उस वक्त तक के लिए दोबारा आपसे मलीर के धरने में दोबारा आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुर्तज़ा जारचवी बॉम न्यूज़ से। इस टाइम हम कराची के इलाके मलीर 15 इशारा फैसल मलीर 15 पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपके साथ इशारा फैसल के धरने में थे। अभी मलीर 15 पे जो धरना सौदाए कोयटा के लिए
धरना जारी है। तो मलिर 15 पे उस टाइम पहुँचे हैं और ये आप बैक पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कसीर तादाद में यहाँ आवाम की बहुत बड़ी तादाद में आवाम यहाँ, औरत, लेडीज, मर्द, बच्चे शदीद तरीन सर्दी में यहाँ पहुँचे हुए। तो यहाँ की लाइव धरना अपडेट कुछ देर के लिए हम आपको होम न्यूज़ चैनल के जरिए बराह रास्त मलिर 15 से आपको पेश कर रहे हैं। हैदर भाई, हैदर भाई, हैदर भाई, सर्दी हो रही है ना इसलिए 10 मिनट इस चक्कर में सबको मेरा सलाम। आज इस मकाम पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, उससे पहले मैंने बहुत जगह बातें की हैं, बहुत जगह, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है इस सांगे की मजम्मत करने के लिए कि मैं किन अल्फाजों में इसकी मजम्मत करूँ। लेकिन ये जनूनी दहशतगर्द जो अपने आप को दाइश, लश्कर जंगी और दीगर नामों से और अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, ये कैसे मुसलमान हैं जो अपने हाथों से मुसलमान भाई का गला काट रहे हैं? इतना ही शर्म की बात है। दरअसल इन्होंने मुस्लिम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन ये अंदर से मुसलमान नहीं है। हमें इनकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। मैं यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जिस दर्द, जिस गम और जिस परेशानी का सामना आप लोग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को तन्हा ना समझें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान का हर मुहब्बे वतन शहरी, हर मुसलमान शहरी आपके इस गम में बराबर का शरीक है। और हम जो हजारा बिरादरी जिस कब से इस वक्त कोयटा में गुजर रही है, यहाँ अभी मौसम इतना सर्द नहीं है, तो यहाँ इतनी सर्दी का एहसास हमें, जबकि वहाँ -7 और -8 के करीब चल रहा है। और जिस परेशानी के आलम में मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए ये रियासत पाकिस्तान का वली जो है वो उनके पास चला जाए और उनके सरों पे हाथ रख दे, उनके गम में शरीक हो जाए। लेकिन क्या करें कि उनके पास शायद मसरूफियात में से टाइम नहीं निकल पाता है। तो हम इस जगह से खड़े होकर एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि खुदारा आपके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई मसला नहीं है, फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे और उन मजलूमों की दादरसी करें। इस तरह का हजारा बिरादरी के साथ, तसल्सल के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसकी हर दफा मजम्मत की जाती है, हर दफा आईनी हाथों से निपटने का कहा जाता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरीके से लोगों के अंदर गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, अगर ये परेशानियां लोगों की दूर नहीं की जाती है, इन दहशत गर्दों को लगाम नहीं दी जाती है और लोगों को इसी तरह उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा, तो ये बात ऐसा ना हो कि कहीं आगे दूर तक चली जाए और लोग अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद अपने हाथों में कर लें। अब इसके कि लोग इस तरफ कामजन हो जाए, मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा
کہ خدا نے اس طرف توجہ دے، لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اور ایک بار پھر متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کی طرف سے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اور ہزارہ برادری کے اس غم میں، اس احتجاج میں، اور جب تک آپ اس احتجاج پہ بیٹھے ہیں ہم آپ کے شان بشان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ایک بار پھر میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا خدا را انا کے بت کو توڑ دیجیے اور اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے وہاں چلے جائیں، تاکہ ہماری جو ہزارہ برادری ہے اور ان کے غم میں جو پورا پاکستان جس کرب سے گزر رہا ہے وہ اس سے راحت فرما سکے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی رہنا. یہ ظالم حکمران، یہ نام نہاد اسلامی ریاست مملکت خداداد پاکستان کے ٹھیکیدار، یہ وزیر اعظم، ذلیل و رسوا وزیر اعظم، بیساکھیوں پر چلنے والا وزیر اعظم اپنی اتحادی حکومت کے ساتھ اس غرور کے تحت ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، جس نے ہماری ماؤں بہنوں کو منفی درجے حرارت میں تنہا چھوڑا ہوا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر وہ کوئٹہ کی سرزمین پر لواحقین شہداء کے درمیان نہ گیا تو بھی یہ لواحقین شہداء اٹھ جائیں گے. تو یہ آپ کی بھول ہے عمران خان، جب آپ نے شیخ رشید کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرا جہاز لو اور کوئٹہ جاؤ ان لواحقین کے پاس، تو آپ کو غیرت سے اسی وقت بڑھ جانا چاہیے تھا. اسی جہاز میں آپ کو خود کوئٹہ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آپ کی گردن میں سریا آ چکا ہے. یہ ادب کے الفاظ ہم بہت استعمال کر چکے. 5 روز سے کوئٹہ کی سرزمین پر علماء کرام میں سربراہان ملت کراچی سے ادب و احترام کے ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اب یہاں سے فرنگی کے دھرنے میں آپ سے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. لیکن یاد رکھو عمران خان، 15-20 منٹ میں فرنگی ڈائن نمبر دھرنے میں آپ کو سپورٹ کر سکتی دوبارہ ہے، کرتے ہیں، یہی شیعہ اپڈیٹ کرتے ہیں وہاں سے دھرنے کی کیا صورت حال ہے، وہاں سے براہ راست آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اگر یہ شیعہ علی نے ناظرین، میں ہوں حکیم مرتضیٰ جار ٹی وی اسلام. ہم کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 2.5 یہ دیکھ رہے ہیں آپ، حسینی امام بارگاہ کورنگی نمبر 2.5 نمبر کی مین روڈ پہ اس ٹائم دھرنا جاری ہے. ابھی ہم اب سے کچھ دیر پہلے ہم آپ کے ساتھ ایسپورٹ ہو گئے تھے اور وہاں کے دھرنے کی مریض 15 کے دھرنے مریض 15 سے ہم کورنگی 2.5 نمبر آئے. یہاں پہ کورنگی 2.5 نمبر پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا دھرنا جاری ہے اور عوام کی بڑی کثیر تعداد میں یہاں اتنی شدید ترین سردی میں عورتیں بچے آئے ہوئے. تو ابھی ہوم نیوز چینل پہ ہمیں معروف خطیب علامہ علی سجاد آبدی اور معروف ڈانڈی کورنگی کے رہنما ذوالفقار گیلانی صاحب نے جوائن کیا ہے. گیلانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بڑے رہنما سبیل کمیٹی کے چیئرمین ہیں یہاں کے، بڑی خدمات ہیں ان کی ڈانڈی کورنگی کے. بولیں آپ. تمام مومنین کو یا علی مدد. لیکن جس طرح اور جگہ پر مومنین نے دھرنا دیا، اس طرح ہم نے کورنگی میں کورنگی 2.5 نمبر ڈبل روڈ پہ حسینی امام بارگاہ کے سامنے اپنی مدد آپ کے تحت کل سے دھرنے کا اہتمام کیا ہے. تو اس میں بچے عورتیں سب اس میں شامل ہیں اور سبھی کا بندوبست کیا ہم نے، لنگر نظر نیاز کا بندوبست کیا ہے. اور بس ہم یہی کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ تو ہم کوئٹہ والوں سے اور کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے. اب اس کے علاوہ تو مولا ہمارا مددگار ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے. ناظرین، علامہ علی سجاد، بہت شکریہ. ذوالفقار گیلانی صاحب آپ سے مخاطب تھے. علامہ علی سجاد آتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے نام، درود و سلام محمد و آل محمد پر. عزیزان،
یہ دھرنا جو کل سے کورنگی میں جاری ہے اور تمام مومنین مومنات بچے بوڑھے جوان مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، یہ صرف اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے وزیر اعظم کو خیال آئے گا اور وہ کوئٹہ جائے گا. تو میں کل بھی عرض کر چکا ہوں دھرنے میں، آج بھی عرض کر چکا ہوں دھرنے میں، اور ابھی پھر آپ کی خدمتوں میں عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، ہم نے آج کورنگی کے دھرنے سے آپ کے وزیر داخلہ کے لیے کچھ پیشگی رقم جاری کی ہے، جو ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں دیگر چینلز میں موجود ہے، جو ہم نے کہ آپ کے پاس شاید کرایہ نہیں ہو رہا ہے کوئٹہ جانے کے لیے، تو ہم نے تمام مومنین نے کورنگی کے چندہ کر کے آپ کے وزیر داخلہ کی جانب روانہ کیا ہے کہ وہ جہاں سے دل چاہے جیسے دل چاہے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجے، ہم جو ہے وہ پیسے آپ کو دیں گے تاکہ آپ کوئٹہ کی طرف روانگی اختیار کریں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا کوئٹہ تو آپ آئیں گے ہی آئیں گے، آپ کو کراچی بھی بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے، ہم آپ سے کیش نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کا خیال کریں. جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے، وہ کہاں گئے وعدے، وہ کہاں گئے وعید. آپ آئیے تو صحیح، آنکھیں کھولیے. اگر آپ کوکب کے نشے سے باہر آ گئے ہوں تو دیکھ تو لیجیے. اگر کتوں کے کھیلنے سے آپ کو فرصت مل گئی ہو تو آپ کوئٹہ کی جانب رخ کریں. ترکی کے ڈرامے بازوں کے ساتھ آپ نے بہت ڈرامے کر لیے، اب ذرا کوئٹہ آئیے، آپ کے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ اب کراچی کے بعد پورا سندھ اور سندھ سے نکل کے پنجاب جام ہو جائے کہ آپ کا جہاز یا ہیلی کاپٹر بھی اڑنے کی اجازت نہ ملے آپ کو، کیونکہ پھر آپ کے پاس اقتدار نہیں رہے گا. کل نماز جمعہ کے بعد اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. شیعہ قوم وہ ہے، آپ نے 126 دن دھرنا کیا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا. نواز شریف کی حکومت آپ گرا نہیں سکے. تاریخ اور ماضی گواہ ہے کہ ہم 3 دن اسلام آباد میں بیٹھے تھے ماضی میں، اور اپنے مطالبات پارلیمنٹ ہاؤس سے منوا کے اپنے اپنے گھروں کو آئے تھے. تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام آباد ہم سے دور نہیں ہے. اسلام آباد ہم آنکھ بند کر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. آپ کا اقتدار بھی جائے گا، آپ کا ایوان بھی جائے گا، آپ کی اسمبلی بھی جائے گی، اور آپ جو سینٹ کے انتخابات کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا. بہتر یہ ہے، میرا ذاتی طور پہ مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئٹہ کی طرف رخ کریں. نشوں کو، کتوں کو، ڈرامے بازوں کو، ڈرامے بازی کو چھوڑ کے آپ کوئٹہ کی جانب رخ کریں. اور مومنین اس دھرنے کو، جو دھرنے چل رہے ہیں پاکستان بھر میں، کراچی سمیت پاکستان بھر میں، اس دھرنے کو کامیاب کریں. اپنی شرکت کو یقینی اور حتمی بنائیں. ہر شاہراہ کو جام کر دیں، نہ جہاز اڑے، نہ ٹرین چلے، نہ بسیں چلیں. روڈ جام کریں، ہر طرح سے جام کریں، کیونکہ اگر آج تم خاموش رہے تو تمہارے گھروں سے بھی جنازے اٹھیں گے. اگر تمہاری خاموشی رہی تو تمہارے گھروں سے بھی جنازے اٹھیں گے. تو یہ یاد رکھو کہ اپنے ماں بہنوں کے لیے، کوئٹہ والوں کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور ان کی آواز بنو. السلام علیکم. ماشاءاللہ علی سجاد عاطف صاحب، میں ابھی ایئرپورٹ سے دھرنے سے امریل کے 15 کے دھرنے سے آ رہا ہوں. کثیر تعداد میں مومنین شدید ترین سردی میں، عورتیں، مائیں بہنیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. یہ جو ہم اس وقت، جو ہماری مائیں بہنیں، جوانوں، پیر، بچے، بوڑھے شاہراہوں پر ہیں، یہ ہمارا وہ رشتہ ہے جس رشتے کا نام ہے علی ولی اللہ، جو ہمیں جوڑتا ہے. اس رشتے نے ہمیں جوڑ رکھا ہے. میں زندگی میں ایک دفعہ کوئٹہ گیا ہوں ابھی تک، اس کے علاوہ کوئٹہ نہیں گیا. کوئٹہ کا شاید کوئی بندہ مجھے جانتا بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو زندگی میں کبھی کوئٹہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن کوئٹہ والوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جس چیز نے ہم کو جوڑا ہے وہ یا تو علی ولی اللہ ہے یا لبیک یا حسین. ماشاءاللہ، یہ تھے علامہ علی سجاد عاطف صاحب، آپ کو دھرنے سے متعلق اپیل کر رہے تھے. حشر روشنی باقی. مومنین کرام، یہ سوپ جو ہے نا، آپ ادھر بھی آگے پی لیں بھائی. اس کو سوپ کو بند کر دیں. طاہر دیدی، سوپ کو بند کر دیں تاکہ یہ لوگ ادھر تشریف لے آئیں. میں آپ دعوت خطاب دوں گا جناب قبلہ مولانا سید باقر حسین دیدی صاحب کو،
जो नायब सदर है जाफरिया अलहंस पाकिस्तान के कि वो तशरीफ लाएं और अपना खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि इस वक्त कराची शहर के 24 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर मिल्लत तशय्यो की माएँ, बहनें, बेटियां, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग शाहराहों के ऊपर बैठे हैं और इस सर्द मौसम में निस्फ शब के अंदर ये हजरात शाहराहों पर बैठकर दुनिया को बता रहे हैं कि हम नहीं बैठे बल्कि हरारत ईमान हमको यहाँ लेके बैठे। और आप नहीं जाग रहे बल्कि यहाँ से लेकर ऐवाने इख्तिदार में बैठने वाला हर शख्स जागा हुआ है। लेकिन फर्क इतना है कि आप जिंदगी के आसार के साथ जाग रहे हैं, वो मौत के आसार के साथ जाग रहे हैं। मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन एक पैगाम जो इस निस्फ शब की मंजिल पे देना चाहता हूं वो ये है कि ये सवाल अबस है कि कब तक बैठेंगे। ये सवाल ही अबस है कि कब तक बैठेंगे। हम तो 1400 साल से शाहराहों पे बैठे हैं, इसलिए कि एहतजाज हमारा हक है, इस्तेहकाक है। और अब जमाने को समझ में आ जाना चाहिए कि जलूस, आजादारी, मातम की वजह क्या है। वजह यह है कि हम 1400 साल के बाद भी सीने पे हाथ मारकर सोई हुई दुनिया को जगाते हैं और जगाकर बताते हैं कि कातिल अगर पकड़ा जाता पहला तो आज का कातिल भी पकड़ा जाता, लेकिन जब पहला कातिल नहीं पकड़ा गया तो आज का कातिल कहां से पकड़ोगे। जब तुमने पहला दहशतगर्द नहीं पकड़ा तो तुम आज का दहशतगर्द कहां से पकड़ोगे। हमें इस अम्र में कोई शिकवा नहीं है कि हम शहीद हो रहे हैं, हम शहादत पर शुक्र अदा करते हैं। इस मुमलिकत के अंदर हमारा खून जितना सयाल होगा उतना नवेद इनकलाब का गुलाब खिलेगा। हम इन शहादतों के जरिए से नवेद इनकलाब इस मुमलिकत में सोए हुए इंसान को सुनाना चाहते हैं। हमने शाहराहों के ऊपर ये बस्ती इसलिए बसाई है कि हर गुजरने वाला सवाल करे कि क्यों बैठे हैं, और जब वो क्यों का जवाब तलाश करेगा तो उसे पता चलेगा कि हम कभी पन्नामे सिपाही साहबा निशाने पे रहे हैं, कभी पन्नामे लश्करे झंगवी निशाने पे रहे हैं, कभी पन्नामे तालिबान निशाने पे रहे हैं, और आज मच में शहीद होने वालों की शहादतों पर दाश ने जिम्मेदारी कबूल करके बताया कि अब हम इंटरनेशनल दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, लेकिन हम मुमलिकत में रियासत को भी मुत्तला कर रहे हैं, इदारों को भी मुत्तला कर रहे हैं। न हम सिपाही साहबा से खौफजदा हुए, न लश्कर झंगवी से खौफजदा हुए, न तालिबान से खौफजदा हुए, न हम दाश से खौफजदा हैं। खौफजदा तो मुमलिकतें होती है, लेकिन जिनके सीनों में करबला का चिराग जल रहा हो वो किसी दहशतगर्द से खौफजदा नहीं होते। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने वो चिराग जो करबला में जलाया था उसकी हरारत से आज सीने जाग रहे हैं। अजीजों, यमन में हमने इनका मुकाबला किया है, शाम में हमने इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, नहीं इराक में हमने दाश का मुकाबला किया है। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अगर दाश ये ऐलान कर रही है कि हमने ये खून बहाया है तो हम खौफजदा नहीं है, हम उसके मुकाबले के लिए सीना सिपर है। मैं नुआ खानी के लिए दरखास्त करूंगा अली अकबर रिजवी भाई से, और मैं उनका बहुत ही मुतशक्कर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए इस सर्दी के आलम में।
सोनू मोनू भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं और इरफान भाई भी यहाँ पे भी थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर, खुदा तुम्हें जिंदगी दे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, तुम्हें नजर बस से बचाए खुदा। नारे तकबीर। यकीनन सर्दी बहुत ज़्यादा है और आप मुस्तकिल जो मौज़िज़ीन यहाँ पर आ रहे हैं वो आपसे फरमा रहे हैं, दस-बस्ता इल्तिमास भी कर रहे हैं कि जो यहाँ हम इस सर्दी में बैठे हैं, अगर हम एक नज़र हज़ारा वालों के गम में डालें तो किस तरीके से अपनी लाशें लेकर वो इस वक्त सर्दी में माएँ बहनें ज़ैनबी अज़म और अकबरी अज़म के हौसले बुलंद करते हुए इस वक्त हज़ारा में मौजूद हैं। तो आइए मैं देखता हूं कि कौन कौन मेरी आवाज से आवाज मिलाता है। जो जहां खड़ा है वहीं से जवाब दे, अपने होने का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुनिया को पता चल जाए कि जब हम खुदा का नाम लेते हैं तो कितनी बुलंद आवाज से लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे आपकी आवाज मेरी आवाज मिलके इस नारे में शरीक हो जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए हैं। आइए मिलके इस नारे में शरीक हो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। अब जब हम अली वालों को मरना क्यों पसंद है, अब हम तो खुद चाहते हैं कि हम उसके मानने वाले हैं कि जिसने हमें सबक दिया है कि हमें मौत से नहीं डरना, ना हम मौत से डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम मरते ही नहीं। उसकी वजह ये है कि हमें ना मारने वाले एक किबला शहंशाह हुसैन नकवी साहब का जुमला मैं यहाँ कोट करता हूँ कि दुश्मन हमें मार के मुस्तरब है, हम मर के मुतमईन हैं। तो मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ अब आप सबका ज़ौक़े समात देखते हुए, क्योंकि उसके बाद आलमी शोहरत याफ्ता नवाखाया मौजूद है, मुझसे कई गुना कई दर्जा अच्छा पढ़ने वाले पूरे पाकिस्तान में मौला की मथा सरा करते हैं। करबला, ईरान, इराक, शाम, इससे बड़ी कोई जगह नहीं, हर जगह नवाखानी करते हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नवाखा अताए शहज़ादी कौनैन जनाब सुबही वाब्दी साहब भी मौजूद हैं और जनाब ज़बार हुसैन ज़ैन अली रिज़वी भी मौजूद है। इंशाअल्लाह कलाम पेश करेंगे। अब हमें क्यों पसंद है मरना, क्यों पसंद है मरना? हम तो बैठे ही इसलिए कि आओ हमें मार दो। क्यों? मैं पेश करता हूँ 4 मिसरों में कि कब्र में इसके सिवा हम और क्या ले जाएंगे, कब्र में इसके सिवा हम और क्या ले जाएंगे, नुस्खे नादे अली खाके शिफा ले जाएंगे, नुस्खे नादे अली खाके शिफा ले जाएंगे। दफन कर देंगे मुझे जब लोग पाकिस्तान में, दफन कर देंगे मुझे जब लोग पाकिस्तान में, 2 फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे, 2 फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। इश्क़े मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, इश्क़े मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, और वहां भी तोहफे हमें, वहां भी तोहफे हमें अनमोल दिए जाते हैं। और क्यों हमें मरना पसंद है, मैं पेश करता हूँ 4थे मिसरे में कि इश्क़े मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे हमें अनमोल दिए जाते हैं। और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, हाथ मातम के लिए
قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. آج کے لیے بندے اس تاریخی دھرنے میں نوحہ خوانی کے لیے درخواست گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں زوار حسین جناب زین علی رضوی صاحب سے کہ آئے اور آج کی اس تاریخی دھرنے میں دشمنوں کو بتا دے کہ کتنے ہم شیعان علی اس وقت رات کے 2 بجے بھی پاور میں ہیں. میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں، اس کے بعد زین علی رضوی صاحب جانے آپ جانے نعرہ بلند کرتا ہوں. مل کے میرے ساتھ ہم آواز ہو کے اس نعرے میں شریک ہو. لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی معززین حاضرین دھرنا جو یہاں موجود ہیں ان سب کی خدمت میں ضمیر قلب سے السلام علیکم یا علی مدد. مولا آپ کا یہ جذبہ قائم و دائم رکھے. میری مائیں بہنیں برادران بزرگان یہاں پہ اطفال جتنے بھی موجود ہیں تمام کو مولا سلامت رکھے. شدید سردی میں آپ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں. شہدائے کوئٹہ، شہدائے ہزارہ، شہدائے مچ اور خصوصاً شیعان علی کو جو مارا جاتا ہے اسی بنا پہ مارا جاتا ہے نا کہ ہم علی کا نام لیتے ہیں. دیکھیں آپ نے کچھ لوگوں کو مار کر یہ چاہا کہ سب کچھ بند ہو جائے. آج پورے پاکستان میں علی علی ہو رہا ہے، حسین حسین ہو رہا ہے. تو دونوں ہاتھ بلند کر کے تینوں ولایتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو ہمارا ایمان ہے، جان ہے، پہچان ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری میرے بھائی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، میرے خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ. ہاتھ کھول کر، ہاتھ اٹھا کر، ہے ہماری درسگاہ. یہ گواہی ہے. حق کا سیدھا راستہ، شہادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ. لبیک یا حسین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں. میرے بعد انشاءاللہ میرے بڑے بھائی سبیہ بھائی بھی انشاءاللہ نوحہ خوانی کریں گے اور یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر جانا ہے ہم لوگوں نے حاضری دینے کے لیے. 4 مصرے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیے گا کہ ہمیں موت سے ڈرایا جاتا ہے جبکہ ہماری گھٹی میں یہ شامل ہے ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ. چاہے ہم بستر پر ہی کیوں نہ چلے جائیں ہم شہید ہیں، تو ہمیں اس طریقے سے مار کے تم کیوں ڈرانا چاہتے ہو. میں پیش کر رہا ہوں 4 مصرے. سماعت فرمائیے گا کہ مس نہیں کی یہ جبیں خاک شفا سے ہم نے، مس نہیں کی یہ جبیں خاک شفا سے ہم نے، اپنے سجدوں کو ملایا ہے خدا سے ہم نے. جزاک اللہ. میرے بھائی جو فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر آگے آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی اور یہاں پر دھرنا بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا. اور جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ جو داد دے رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آگے آگے آ جائیں. انشاءاللہ ماحول بن جائے گا. سبیہ بھائی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سینئر نوحہ خواں عرفان بھائی، سونو وونو بھائی اور دیگر نوحہ خواں حضرات انشاءاللہ یہاں پہ شامل ہوں گے. میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. اپنے سجدوں کو ملایا ہے خدا سے ہم نے. شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا کہ کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے، کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. ارے خود منگایا ہے کفن کرب و بلا سے ہم نے. یا علی، یا علی. سلامت رہیے، سلامت رہیے. مولا کوئی غم نہ دے.
सिवाय ख़मा मजलूम करबला के रिकॉर्ड कलाम के बस 2 से 3 बंद पेश करता हूँ। समाअत फरमाइएगा कि हम अली के चाहने वालों के लिए मौत क्या है। पेश करता हूँ। मौत में रख दी है ऐसी मेरे मौला ने कशिश। समाअत फरमाइएगा। मौत में रख दी है ऐसी मेरे मौला ने कशिश, बाकी रहती नहीं कोई दिले मोमिन में खलिश। और कब डरा पाई है शीयों को धमाकों की तपिश, रोक सकती नहीं हक से हमें कोई साजिश। करबला वालों की सुन्नत पे अमल करते